Plasma lemma is very delicate, invisible, elastic external cell membrane. The thickness varies from 0.00025 mm to 0.025 mm. In several species, the thickness varies. It can be from zero point 0.2 to 0.6 mm. The plasma lemma is composed of double layer of lipid and protein molecules. According to Schneider and Wuyfaf-Bateman, the plasma lemma consists of two darkly staining layers of about 200 angstrom thick, separated by a clear layer of another big filament about 80 angstrom in diameter. The outer layer of plasma lemma is supposed to contain mucoprotein. Plasma lemma can regenerate itself when broken. This membrane is selectively permeable and it regulates an exchange of substance such as water, oxygen and carbon dioxide. प्लाज्मा लेमा सामान्य कोशिका झिल्ली की तरह प्रोटीन व वसा अणुओं के दोहरे स्तर से बनी होती है। यह जल में भीगती नहीं है। इसकी बाहरी सतह पर म्यूकोप्रोटीन के अणुओं के सूक्ष्मतम तंतुक पाए जाते हैं, जिसे माइक्रोविलाई या सूक्ष्मांकुर कहते हैं। सूक्ष्मांकुरों के कारण इसकी सतह बाहर से चिपचिपी होती है। यह दृढ़ परंतु लचीली झिल्ली होती है जो जीव द्रव को बहने से रोकती है, परंतु शरीर की वृद्धि व कूटपाद निर्माण में अवरोधक नहीं होती है। यह चयनात्मक पारगम्य होती है, यानी सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। यह बाह्य वातावरण व शरीर के भीतर निरंतर रासायनिक पदार्थों के लेन देन का नियंत्रण करती है। इनमें पुनर्जनन यानी रीजेनरेशन की अद्भुत क्षमता होती है। अतः टूटने या चोट लगने पर यह तुरंत मरम्मत कर ठीक हो जाती है, जिससे यह जंतु नष्ट होने से बचता है। इनमें कोशिका पायन यानी पिनोसाइटोसिस और कोशिका भक्षण यानी फेगोसाइटोसिस द्वारा तरल व ठोस भोजन पदार्थ को ग्रहण करने की क्षमता होती है। These have the capacity of pinocytosis and phagocytosis. Pinocytosis means taking in of liquid and phagocytosis means taking in of solid food. Cytoplasm यानी कोशिका द्रव्य. Inside the plasma lemma there is a dense mass of cytoplasm containing several organelles. It is differentiated into two distinct zones, an outer ectoplasm and an inner endoplasm. कोशिका द्रव्य एक आधारभूत तरल होती है, जिसे साइटोसोल या हाइलोप्लाज्म भी कहते हैं। इनमें अनेक संगठित संरचनाएं निलंबित यानी सस्पेंडेड रहती है। मैट्रिक्स में जीवन उत्पन्न करने के लिए मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ यानी उपापचयी क्रियाएं निरंतर होती रहती है। इसे दो स्पष्ट भागों में विभेदित किया जाता है, बाह्य पतला स्तर जिसको कि एक्टोप्लाज्म कहते हैं और भीतरी गाढ़ा स्तर जिसको एंडोप्लाज्म
कहते हैं। Ectoplasm forms the outer and relatively firm layer lying beneath the plasma lemma. It is thin, clear, and hyaline layer. It is thickened into a hyaline cap at the advancing end at the tip of pseudopodia. The ectoplasm has a number of conspicuous longitudinal ridges. Due to the presence of longitudinal ridge in the ectoplasm, it is considered as a supporting layer. Ectoplasm lend form to the body wall. बाह्य प्रद्रव्य या एक्टोप्लाज्म में दो स्तर पाए जाते हैं। बाहरी तरल पदार्थ जो कि रंगहीन, पारदर्शी, कणिका रहित, स्वच्छ, महीन व चमकीला स्तर होता है, जिसे कचाभ स्तर या हायालीन लेयर कहते हैं। यह स्तर प्लाज्मा कला व भीतरी प्लाज्मा जेल स्तर के मध्य पाया जाता है। कूटपाद निर्माण के समय यह कचाभ स्तर कूटपाद के शीर्ष पर एक हायालीन कैप या कचाभ टोपी का निर्माण करता है। कचाभ स्तर के नीचे भीतर की ओर तंतुमय व कणिकामय जीव द्रव्य का गाढ़ा चिपचिपा जेली सदृश प्लाज्मा जेल स्तर पाया जाता है। एंडोप्लाज्म या अंतःप्रद्रव्य, यह प्लाज्मा जेल की तुलना में और अधिक कणिकामय, कम तंतुमय व अधिक तरल जीव द्रव्य का केंद्रीय पिंड होता है। Endoplasm forms the main body mass completely surrounded by the ectoplasm. It is granular, heterogeneous fluid containing bipyramidal crystals. It is made up of outer, relatively stiff plasma gel and more fluid inner plasma sol. Plasma gel is granular and more solid, but its granules show no movement. The plasma sol is highly granular fluid having various inclusion, and it shows streaming movement. Besides granules, endoplasm contain a number of important inclusion such as nucleus, contractile vacuole, food vacuole, mitochondria, Golgi apparatus, fat lobules, plate-like or bipyramidal crystal. प्लाज्मा जेल की तुलना में यह अधिक कणिकामय व तंतुमय होते हैं। इसमें तरल का बहाव स्पष्ट गतियों से होती है, जिसे साइक्लोसिस कहते हैं, यानी चक्रीय गति। बाहर की ओर यह एक्टोप्लाज्म के भीतर स्तर प्लाज्मा जेल से घिरा रहता है। प्लाज्मा जेल प्लाज्मा सोल में व प्लाज्मा सोल प्लाज्मा जेल में परिवर्तित होने की क्षमता रखते हैं। कोशिका द्रव का साधारण सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन करने पर निम्न स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं: कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल यानी संकुचनशील रिक्तिका, फूड वैक्यूल यानी कि खाद्य रिक्तिका, वाटर वैक्यूल यानी कि जलधानियाँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि।